وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ ہم کوہرے اور اندھیرے کی چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ ہم بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ہم 20 گز کا فاصلہ طے کر کے پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں خاردار تار لگا ہوا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں رینگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہم نے اپنی میگزین بیلٹ میں سے 2 چھوٹے مگر بڑے طاقتور پلاس نکالے اور برق رفتاری سے خاردار تار کو 2 جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا، پھر دونوں جگہوں کو ایک دوسرے سے ہلا دیا۔ یوں وہاں ایک 3 فٹ چوڑا سوراخ بن گیا۔ ہم چاروں کمانڈو باری باری اس سوراخ میں سے دوسری طرف نکل گئے۔ آگے زمین نیچے اترائی میں چلی گئی تھی، جہاں گھاس تھی جو شبنم اور کوہرے کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب کے ساتھ ہم نے بھی اپنے آپ کو نشیب میں اس طرح گرا دیا کہ ہم رول کرتے یعنی لڑکتے ہوئے نیچے جھاڑیوں میں جا لگے۔ اورنگزیب جلدی سے اٹھا اور جھک کر پہاڑی کی دیوار کی جانب دوڑ پڑا۔ ہم بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ پہاڑی کی دیوار میں اونچی سخت سرکنڈوں والی جھاڑیاں تھیں۔ ہم ان میں گھس گئے۔ شبنم اور رات کو پڑنے والے کوہرے اور دھند نے ان سرکنڈوں کو بھی گیلا کر دیا ہوا تھا، اس لیے ان میں سے گھس کر دوسری طرف نکلتے وقت آواز پیدا نہ ہوئی۔ ہم پھر اوندھے لیٹ کر رینگنے لگے۔ کمانڈو اورنگزیب اچانک ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے سر تھوڑا سا اٹھا کر دیکھا۔ وہ اندھیرے اور اونچی جھاڑیوں میں مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میرے پیچھے دونوں کمانڈو بھی میرے قریب آ کر زمین پر اس طرح اوندھے ہو کر رک گئے تھے۔ اچانک ہمیں الو کے بولنے کی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ یہ ہمارا خاص اشارہ تھا کہ سب خیریت ہے، آگے بڑھو۔ یہ آواز کمانڈو اورنگزیب نے نکالی تھی۔ جدھر سے آواز آئی تھی ہم جتنی تیزی سے رینگ سکتے تھے رینگتے ہوئے اس طرف چلے گئے۔ ہم نے کمانڈو اورنگزیب کو پہاڑی کے عین نیچے جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہمیں ہاتھ سے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم تیزی سے اس کے پاس آ گئے۔ اورنگزیب جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹا رہا تھا، پھر ان جھاڑیوں میں گھس گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے جھاڑیوں میں گھس گئے۔ جب جھاڑیوں سے باہر نکلے تو ہم ایک خشک جگہ پر آ گئے تھے جہاں زمین کی گھاس گیلی نہیں تھی۔ اندھیرا باہر کی نسبت یہاں زیادہ تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے پینسل ٹارچ روشن کر دی اور بولا، کھڑے ہو کر آ جاؤ۔ پینسل ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا کہ ہم ایک تنگ غار میں تھے جس کی دیواروں کے باہر کو نکلے ہوئے پتھر نظر آ رہے تھے۔ ہم کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ یہ وہی سرنگ تھی جو پہاڑی کے عقب کی جانب سے مغل بادشاہوں کے زمانے میں کسی نامعلوم مقصد کے لیے کھودی گئی تھی اور اب عرصہ دراز سے بند پڑی تھی، اور پہاڑی ٹیلے کے اوپر بھارتی فوجیوں کو اس کی خبر نہ تھی۔ اب ہم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے تھے اور کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے قدم قدم چلتے رہے تھے۔ کمانڈو اورنگزیب پینسل ٹارچ کی روشنی ڈال کر ہمیں راستہ دکھا رہا تھا۔ پینسل ٹارچ کی روشنی اگرچہ معمولی تھی مگر غار کے اندھیرے میں وہ بہت کافی تھی۔ اس نے چھت پر روشنی ڈالتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ہم اوپر بھارتی فوجی چھاونی کے نیچے سے گزر رہے ہیں۔ غار میں نمی تھی اور فضا میں گھٹن کا احساس تھا، مگر ہمیں اس قسم کے ماحول میں رہنے اور گزر جانے کی بھرپور ٹریننگ مل چکی تھی۔ سرنگ کی چھت ہمارے سروں سے کوئی 1 فٹ اونچی تھی۔ کئی جگہوں پر چھت پر لٹکتے ہوئے جالے ہمارے چہرے کے آگے آئے۔ سرنگ میں باہر کی نسبت سردی بہت کم تھی، بلکہ ہمیں ہلکی ہلکی گرمائش کا احساس ہو رہا تھا۔ سرنگ آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گئی، جہاں زمین پر جگہ جگہ چھت پر سے اور دیواروں پر سے اکھڑ کر گرے ہوئے پتھر اور مٹی پڑی تھی۔ ہم بڑی احتیاط سے چل رہے تھے۔ ایک جگہ جا کر سرنگ بند ہو گئی اور آگے دیوار تھی۔ کمانڈو اورنگزیب نے وہاں رک کر پینسل ٹارچ کی روشنی چھت پر ڈالی اور کہا، اوزار نکالو۔ یہ اوزار جو فولاد کی چند گینتیاں تھیں ہمارے 2 ساتھیوں کے پاس تھیں۔ انہوں نے فوراً فولادی گینتیاں نکالی اور جہاں اورنگزیب کھڑا تھا وہاں لپک کر آ گئے۔ کمانڈو اورنگزیب نے چھت پر ایک جگہ ٹارچ کی روشنی ڈالی اور کہا، یہاں سے کھودنا شروع کر دو۔ دونوں کمانڈوز نے چھت کی پتھروں میں گینتیاں پھنسا کر انہیں آہستہ آہستہ دھچکے دینے شروع کر دیے۔ میں نے اورنگزیب سے کہا، کیا پتھر اکھڑ جائیں گے؟ وہ میرے قریب کھڑا تھا۔ ہم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگا، یہ چٹانوں کی پہاڑی نہیں ہے، یہ مٹی گارے اور پتھروں کی پہاڑی ہے۔ میں نے اس کا پورا سروے کر رکھا ہے۔ چٹانی ٹیلے میں ہم سوراخ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن یہ پتھروں اور گارے سے مل کر پہاڑی بنی ہوئی ہے۔ اس دوران چھت کے 2-3 پتھر اکھڑ کر نیچے گرے۔ ہمارے ساتھی کمانڈو اس طرح گینتیاں چلا رہے تھے کہ ان کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ وہ گینتی کے تیکھے سرے کو چھت کے کسی پتھر کے کونے یا پہلو میں پھنساتے اور پھر پوری طاقت لگا کر اسے اوپر کو اکھاڑ لیتے۔ چھت کے چھوٹے بڑے پتھروں کے ساتھ اب مٹی بھی گر رہی تھی۔ میں نے اورنگزیب سے پوچھا، تمہارے خیال میں چھت کی موٹائی کتنی ہوگی؟ اورنگزیب نے کہا، میرے حساب سے ہمیں زیادہ سے زیادہ 5-6 فٹ اوپر تک چھت میں سوراخ نکالنا ہوگا۔ یہ پہاڑی تقریباً 200-250 فٹ اونچی ہے، مگر اس چھت کے اوپر پہاڑی نہیں ہے، بلکہ پہاڑی کے اندر جو قدرتی سرنگ بنی ہوئی ہے اس کا فرش ہے۔ ہمیں اس سرنگ کے اوپر جو سرنگ ہے اس میں جانا ہے۔ اسی سرنگ میں ایمونیشن کا ذخیرہ ہے۔ چھت میں سوراخ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سوراخ کم از کم 3 فٹ چوڑائی میں ڈالا جا رہا تھا۔
थोड़ी देर बाद हमने दोनों कमांडोज को आराम करने का मौका दिया और मैं और कमांडो औरंगजेब गेंतियां लेकर छत में सुराख डालने लगे। वाकई पहाड़ी गारे मिट्टी और पत्थरों की आमेजिश से बनी हुई थी। मिट्टी और पत्थर हमारे ऊपर गिर रहे थे, मगर हम बेफिक्र होकर पूरी जांफिशानी से अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है जितना कि हमने अंदाजा लगाया था। जैसे जैसे छत में सुराख ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, पत्थरों की जिसामत बड़ी होती जा रही थी और उन्हें उखाड़ते हुए हमें काफी वक्त सर्फ करना पड़ रहा था। 15-20 मिनट तक हम काम करते रहे। उसके बाद फिर हमारे दूसरे साथियों ने ये काम संभाल लिया। मैंने औरंगजेब से कहा, यह काम इतनी जल्दी होता नजर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा न हो कि बाहर दिन निकल आए। कमांडो औरंगजेब भी फिक्रमंद था। वो एक हाथ में पेंसिल टॉर्च पकड़े ऊपर छत पर रोशनी डाल रहा था। कहने लगा, चाहे कुछ भी हो, हम अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। छत में से 2-3 बड़े पत्थर सुरंग में गिरे तो उनकी आवाज पैदा हुई। मैंने कहा, ऊपर वाली सुरंग में ये आवाज जा सकती है। कमांडो औरंगजेब ने छत फाड़ने वाले साथियों से कहा, कोई बड़ा पत्थर गिराने से पहले बता दो, हम उन्हें नीचे कैच कर लेंगे। वो मुझसे मुतवज्जे होकर बोला, ऊपर फौजी एमुनिशन डिपो पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई फौजी गार्ड पहरा नहीं दे रहा होगा। गार्ड के सिपाही सुरंग के बाहर जहाँ दरवाजा लगा हुआ है वहाँ पहरा दे रहे होंगे। उन्हें गार के अंदर आकर पहरा देने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। ऊपर किसी वक्त भी कोई इंडियन फौजी चक्कर लगा सकता है। अब ऊपर से कोई बड़ा पत्थर उखड़ता तो हमें इशारा कर दिया जाता, हम दोनों हाथ आगे कर लेते और जैसे ही पत्थर ऊपर से गिरता मैं उसे अपने हाथों में दबोच देता और आराम से नीचे रख देता। कमांडो औरंगजेब ने अपनी घड़ी पर टॉर्च की रोशनी डाली। कहने लगा, रात का 1:30 बजने वाला है, कोई बात नहीं, अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी जल्दी करो। छत का सुराख 1.5 फुट के करीब ऊपर को खोदा गया तो हाथ पूरी तरह से ऊपर नहीं जाते थे। उसके बारे में हमने सोचा नहीं था। छत के सुराख के अंदर पत्थरों और मिट्टी की छत का फासला सुरंग के फर्श से ज्यादा होता जा रहा था और गेंती चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी। इसका इलाज ये निकाला गया कि फर्श पर जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको जोड़कर छोटा सा चबूतरा बनाया गया। हम उसके ऊपर खड़े होकर काम करने लगे, लेकिन इस तरह से हमारे पांव बार बार चबूतरे से हिल जाते और काम की रफ्तार में काफी फर्क पड़ने लगा था। कमांडो औरंगजेब ने पेंसिल टॉर्च फर्श पर पत्थरों के सहारे इस तरह टिका दी थी कि उसका रोशनी का छोटा सा दायरा ऊपर छत के सुराख पर पड़ रहा था। हम दोनों कमांडो साथी पत्थरों पर खड़े छत के सुराख में कंधों तक घुसे गेंतियां चला रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं और कमांडो औरंगजेब अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ियां देख लेते। रात के 2 बज गए और अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ था। कमांडो औरंगजेब भी परेशान हो गया। इतने में ऊपर छत के सुराख के अंदर से हमारे साथी ने सरगोशी में कहा, छत में पत्थर की लंबी चौड़ी सिल आ गई है, इस पर गेंती चलाने से आवाज पैदा होगी। कमांडो औरंगजेब पेंसिल टॉर्च लेकर उठा और खुद सुराख के अंदर रोशनी डालकर देखा। फिर मुझे टॉर्च देकर कहा, तुम देखो। मैंने सुराख के अंदर रोशनी डालकर छत को देखा। वहाँ वाकई एक चौड़ी पत्थर की सिल दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे तक सरबसर चली गई थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर जहाँ पहले कोई रोशनदान होता था जिस पर भारी सिल डालकर बंद कर दिया गया है। मैंने साथी कमांडो से कहा, गेंती मुझे दे दो। मैंने गेंती पकड़कर सिल पर हल्की सी जरब लगाई तो आवाज पैदा हुई। मैंने नीचे आकर औरंगजेब से कहा, सिल बड़ी सख्त है, हमें किसी दूसरी जगह से सुराख करना होगा। औरंगजेब मुझे देखने लगा। हमने नकाब ओढ़ रखे थे और टॉर्च की धीमी धीमी रोशनी में हमें एक दूसरे के चेहरे नजर आ रहे थे। वो दूसरी बार सुराख के अंदर ऊपर गया और चंद सेकंड तक पत्थर की सिल को ठोंक बजाकर देखता रहा। फिर नीचे आकर कहने लगा, मेरा ख्याल है सिल ज्यादा चौड़ी नहीं है, हम एक किनारे से इसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे। उसने अपने साथी कमांडो को इशारा किया। वो गेंती लेकर पत्थरों के ऊपर खड़ा होकर सिल के किनारों को उखाड़ने लगा। नीचे सिर्फ मिट्टी और कंकरियां गिर रही थीं। औरंगजेब ने घड़ी पर निगाह डाली। अगर सुबह होने तक हमारा मिशन मुकम्मल न हुआ तो हम अगली रात के लिए भी सुरंग में बंद रहना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर ऐसी सूरत पैदा हो गई तो हम सुरंग में दिन बसर कर लेंगे, हम भूखे प्यासे रह सकते हैं। औरंगजेब ऊपर छत को तक रहा था। इतने में ऊपर सुराख के अंदर जो कमांडो काम कर रहा था उसने सरगोशी में कहा, एक तरफ से सिल उखड़ रही है। हमारे चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। कमांडो औरंगजेब ने कहा, शाबाश, काम जारी रखो। थोड़ी देर बाद मैंने और औरंगजेब ने सिल का जायजा लिया। वाकई सिल का एक जानिब से सिरा बाहर निकल आया था। अब उसके आसपास की मिट्टी और पत्थर उखाड़े जाने लगे। सिल नीचे को झुक गई। हम जरा जोर लगाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर से भारी कदमों और कई ट्रेलर के पहियों के चलने की आवाज सुनाई दी। हम वहीं साकत हो गए। ऊपर से फौजियों की बातें करने की धीमी आवाजें आने लगी। कमांडो औरंगजेब के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, खुदा का शुक्र है हमने गलत जगह पर छत नहीं खोदी। मुझे यकीन है यहाँ से ऊपर एमुनिशन डंप है। हम सरगोशियों में बात कर रहे थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सुरंग के अंदर मजीद गोला बारूद वगैरह रखा जा रहा है। औरंगजेब ने इस बात में सर हिला दिया।
हम सब हमतनगोश थे और हमारे कान ऊपर से आने वाली आवाजों पर लगे हुए थे। ये आवाजें इतनी मध्यम थी कि फौजियों की बातें समझ नहीं आ रही थीं। ये 3-4 भारतीय फौजी थे। फिर ऐसे लगा जैसे ट्रेलर के ऊपर से भारी क्रेट उतार कर दीवारों के साथ लगाए जा रहे हैं। ये एक नया काम ऊपर शुरू हो गया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कमांडो पार्टी जब अपने मिशन पर निकलती है तो आम तौर पर उसे टारगेट के बारे में पूरी मालूमात बता दी जाती है, मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टारगेट पर पहुंचने के बाद सूरत हाल बदल जाए। फिर कमांडोज को अपनी अक्ल के मुताबिक फौरी तौर पर किसी दूसरे प्लान पर अमल करना पड़ जाता है। यहाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हो गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था और छत के ऊपर दूसरी सुरंग के एमुनिशन डंप में कोई सामान रखा जा रहा था और ये सिलसिला खत्म होने में नहीं आता था। हम सिवाय इंतजार करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर दूसरी सुरंग में भारतीय फौजियों की मौजूदगी में छत की सिल उखाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कोई पता नहीं था कि ऊपर फौजी कब सामान रख कर वापस जाते हैं। रात के 3 बजे का टाइम हो गया और हम चारों कमांडो सुरंग के अंदर अंधेरे में एक दूसरे के पास खामोशी से इस इंतजार में बैठे थे कि कब ये लोग फौजी साजो सामान डिपो में रख कर वापस जाते हैं। ऊपर से बराबर ट्रेलर के बार बार अंदर आने, सामान रखने और भारतीय फौजियों की बातें करने की आवाज आ रही थी। मैंने औरंगजेब से कहा, लगता है आज रात हम अपना टारगेट नहीं मार सकेंगे। कमांडो औरंगजेब ने इस ख्याल से टॉर्च बुझा दी थी कि उसके सेल खर्च न हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, 4 बजे बाहर सुबह की रोशनी फैलनी शुरू हो जाएगी। हमें ऊपर जाकर डायनामाइट भी लगाना है और यहाँ से निकलना भी है। फिर उसने ऊपर सुराख की तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है जम्मू गैरिजन से असलहा गोला बारूद की सप्लाई आई है। ये काम लंबा हो सकता है। फिर क्या ख्याल है? मैंने पूछा। कमांडो औरंगजेब ने मुझसे पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों यहाँ ठहरते हैं, बाकी साथियों को वापस भेज देते हैं। छत के सुराख का काम भी थोड़ा ही रह गया है। कमांडो औरंगजेब को मेरा मशवरा पसंद आया। उसने दोनों कमांडो से कहा, तुम लोग वापस जाओ, हम दोनों यहीं रहेंगे और टारगेट उड़ाकर और मिशन मुकम्मल करके आएंगे। अगर हम सुबह होने तक आ गए तो ठीक है, ना आए तो समझ लेना कि हम दूसरी रात को सुरंग में रहकर टारगेट मारेंगे। फिर तुम ऐसा करना कि कल शाम को अंधेरा होते ही अगर ला सको तो हमारे लिए कुछ बने हुए चने और पानी की छागल ले आना। याद रखो मैं तुम्हें जिस तरफ से लाया हूँ उसी रास्ते से वापस जाना। दुश्मन की पेट्रोल पार्टी से खबरदार रहना और हाँ, जाती दफा खारदार तार को जहाँ से हमने काटा था उसे वहाँ अपनी जगह पर लगाकर जोड़ देना ताकि सुबह किसी को शक न पड़े। ओके, गो। दोनों साथी कमांडोज ने चेहरों पर निकाब चढ़ाए और खामोशी से सुरंग में वापस चले गए। अब सुरंग में मैं और कमांडो औरंगजेब अकेले रह गए थे। हमारे कान सुरंग की छत पर ऊपर की आवाजों पर लगे थे। अजीब इत्तेफाक से ऊपर की आवाजें गायब हो गईं। ट्रेलर जिस पर फौजी साजो सामान लाद कर सुरंग के अंदर एमुनिशन डिपो में लाया जा रहा था उसकी आवाज भी दूर जाकर खत्म हो गई। ऊपर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कमांडो औरंगजेब उठ खड़ा हुआ। मैदान साफ है, हमें छत की सिल उखेड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आज की रात में ही ये मिशन मुकम्मल कर लिया जाए। हम बारी बारी सुरंग की छत की सिल उखाड़ने में लग गए। कोई 10 मिनट बाद सिल एक तरफ से नीचे झुक गई। हमने बड़ी एहतियात से कि आवाज पैदा न हो सिल को थाम कर उखाड़ लिया। सिल के उखड़ते ही ऊपर से बिजली के बल्ब की रोशनी नीचे आने लगी। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह का शुक्र है, चारों धमाका खेज बम मेरी मैगजीन जैकेट में थे। मैंने धीमी आवाज में बल्कि सरगोशी में औरंगजेब से कहा, तुम यहीं ठहरोगे, मैं ऊपर जाकर बम प्लांट करूंगा। हमने हाथों से पत्थर और मिट्टी हटाकर छत में इतना सुराख बना दिया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। कमांडो औरंगजेब बैठ गया। मैं उसके कंधों पर हाथ रखकर छत के शगाफ में ऊपर को उठा और बड़ी एहतियात से सर बाहर निकाल कर देखा। ये एक ऊंची छत वाली चटानी सुरंग थी। दीवार पर एक जानिब बिजली का बल्ब रोशन था। ये देखकर मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई कि सुरंग में एक जानिब जमीन से लेकर छत तक एमुनिशन के बड़े बड़े क्रेट लगे हुए थे। लंबी मेजों पर मुख्तलिफ किस्म के फौजी असलहे के ढेर भी थे। सुरंग खाली थी। मैं ऊपर चढ़ आया। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि इस सुरंग का, जिसका भारतीय फौजी एमुनिशन डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दरवाजा किस तरफ है और क्या वो बंद है। मैं सुरंग की दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता सुरंग के थाने की तरफ बढ़ा। उस वक्त स्टेन गन कांधे से लटकी हुई थी और मेरे हाथ में भरा हुआ पिस्तौल था जिसकी नाली पर साइलेंसर लगा हुआ था। सुरंग चंद कदम चलने के बाद मुड़ गई। मैं भी उसी तरफ मुड़ गया। मेरे सामने कोई 50 गज के फासले पर सुरंग का थाना था जिस पर लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जो बंद था और अंदर की जानिब ऊपर करके एक बल्ब रोशन था। दीवारों पर जगह जगह आग बुझाने वाले सिलेंडर लगे हुए थे। जब मुझे यकीन हो गया कि सुरंग में कोई भारतीय फौजी नहीं है और दरवाजा भी बंद है तो मैं वापस एमुनिशन के जखीरे के पास आ गया। यहाँ बेपनाह गोला बारूद और बम और मिसाइल और दीगर फौजी हथियारों के ढेर लगे हुए थे। मैंने जल्दी से जैकेट की जेब में से छोटी डिब्बी के साइज का प्लास्टिक का टाइम बम निकाला और एक क्रेट के पीछे चिपका दिया।
उसके सामने की जानिब दूसरा बम चिपका दिया। बाएं जानिब मेरी नजर पड़ी तो मुझे सुरंग का एक शगाफ दिखाई दिया। मैंने उसमें झांक कर देखा तो उसमें पेट्रोल के बड़े बड़े कैन फर्श से छत तक लगे हुए थे। ये भारतीय फौज का आरजी पेट्रोल डंप था। मैंने एक बम वहां भी लगा दिया। मेरे पास सिर्फ एक बम रह गया था, मैंने वो भी वहीं लगा दिया। अब मुझे उनके टाइम डिवाइस के बटन दबाकर सेकंडों की सुई को ऑन करना था। इन बमों का दौरानिया 25 मिनट था। इन 25 मिनटों के अंदर अंदर मुझे और कमांडो औरंगजेब को इस इलाके से जितनी दूर निकल सकते थे निकल जाना था। मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा और फिर पेट्रोल डंप के दोनों बमों का बटन दबाकर टाइम डिवाइस की सुई को चला दिया। सुई आहिस्ता आहिस्ता एक एक सेकंड के वक्फे से आगे हरकत करने लगी। उसके फौरन बाद मैंने शगाफ से बाहर आकर एमुनिशन के क्रेटों पर लगाए हुए टाइम बमों के बटन दबाकर उनकी सुई भी ऑन कर दी। हमारा आधा बल्कि आधे से ज्यादा मिशन मुकम्मल हो गया था। अब हमें यहाँ से सिर्फ फरार होना था। मुझे यकीन था कि कोई भारतीय सिपाही सुबह तक सुरंग के अंदर नहीं आएगा, कम से कम 25 मिनट तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एमुनिशन सप्लाई जो अंदर रखनी थी वो रख चुके थे। मैं छत के सुराख में से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही कमांडो औरंगजेब ने सरगोशी में कहा, सब ठीक है। मैंने कहा, सब ठीक है। मैंने चारों बम लगाकर ऑन कर दिए हैं, अब यहाँ से निकलें। हम तेज तेज कदमों के साथ पुरानी सुरंग के थाने की तरफ चलने लगे। औरंगजेब पेंसिल टॉर्च की रोशनी कर रहा था। सुरंग के थाने पर जाकर उसने टॉर्च बुझाकर जेब में रख ली। हमने स्टेन गन हाथों में पकड़ी और सुरंग के थाने में से रेंग कर बाहर झाड़ियों और सड़कंडों में निकल आए। सामने बाहर सर्च लाइट का सफेद दायरा आगे को जा रहा था। हम रुक गए। जब रोशनी का दायरा हमसे आगे निकल गया तो हम दौड़ पड़े। बस ये हमारी गलती थी। हमें खारदार तारों तक रेंग कर जाना चाहते थे, लेकिन बम लगाने के बाद हम चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाएं। जैसे ही हम दौड़े, एक तरफ से किसी फौजी ने चिल्लाकर कहा, हॉल्ट। हम दौड़ते गए। एकदम किसी मशीन गन पोस्ट से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से चीखती हुई गुजरने लगीं। साथ ही टीले की किसी पोस्ट पर से रोशनी राउंड फायर होने लगे। ये रोशनी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते थे और यूं फजा में देर तक रोशनी फैलती रही। सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। हम जमीन पर लेट गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, जिस तरफ से निकल सकते हो निकल जाओ। मैंने उसे देखा कि उसने एक खाई में छलांग लगा दी थी। मैं दूसरी जानिब को दौड़ा, मगर अब देर हो चुकी थी। अचानक 4 भारतीय फौजियों ने स्टेन गन्ने तान कर मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए पहाड़ी के ऊपर ले गए। वो मुझे साथ साथ ठुड्डे भी मार रहे थे। कुछ और फौजी सिपाही भी इधर उधर से निकल आए। वहां शोर मच गया। ऊपर वाली मशीन गन पोस्ट से फायरिंग जारी थी। कमांडो हैं, एक पकड़ा गया है, दूसरे भी होंगे, इस किस्म की आवाजें आने लगी। मुझे पहाड़ी के पहलू में एक गन पोस्ट पर ले जाकर मेरी तलाशी ली गई। मेरी स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड और मैगजीन भारतीय फौजियों ने अपने कब्जे में कर लिया। मेरे हाथ ऊपर थे। एक सिख फौजी पोस्ट से निकल कर आ गया। उसने मुझे गाली दी और कहा, कितने कमांडो थे? मैंने कहा, मैं अकेला आया था, मेरे साथ कोई नहीं था। उसने मेरे मुंह पर जोर से तमाचा मारा और गाली देने लगा, अभी मालूम हो जाता है, चलो इसे ऊपर ले चलो। चारों सिपाहियों ने मुझे दबोच लिया और मुझे खींचते हुए पहाड़ी की चढ़ाई पर ऊपर ले जाने लगे। उस वक्त आसमान पर पिछले पहर की नूर की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। मेरी एक जानिब पहाड़ी की दीवार थी, दूसरी जानिब मैंने देखा कि कोई 50 फुट नीचे एक नाला बह रहा था। रात की आखिरी पहर की हल्की रोशनी में मुझे नाले का पानी साफ नजर आ रहा था। मैंने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। ये फैसला मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये फैसला न भी करता तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने एमुनिशन के जखीरे और पेट्रोल के डंप में जो 4 ताकतवर बम लगाए थे उनके फटने में 15-20 मिनट ही रह गए थे। उसके बाद इस पहाड़ी को आतिशफिशां पहाड़ी की तरह फट पड़ना था और वहां पर मौजूद हर शय के परखचे उड़ जाने थे। मेरी निगाह नीचे बहते हुए नाले पर थी। 2 आदमियों ने मुझे एक एक बाजू से पकड़ रखा था। मैंने नीचे नाले में कूद जाने का फैसला कर लिया था। मुझे मालूम था कि पहाड़ी नाले ज्यादा गहरे नहीं होते और उनमें पत्थर भी होते हैं। उसमें गिरने से मेरी मौत वाक़ई हो सकती थी, लेकिन उसमें 1% जान बच जाने का इम्कान जरूर था, जबकि पहाड़ी पर मौजूद रहने की सूरत में जिंदा नहीं बच सकता था। वक्त गुजरता जा रहा था। भारतीय फौजी मुझे गालियां देते, ठुड्डे मारते, खींचते हुए ऊपर ले जा रहे थे। मैंने आखिरी बार नीचे पहाड़ी नाले की तरफ देखा। चंद कदमों के फासले पर पहाड़ी सड़क मुड़ जाती थी और नाले से दूर हो जाती थी। मुझे जो करना था उसी वक्त करना था। मेरे लिए अपने आप को इन फौजियों से छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इन्होंने अफरा तफरी में मेरे हाथ पीछे नहीं बांधे थे। जैसे ही पहाड़ी का मोड़ शुरू हुआ, मैंने एक जबरदस्त झटके से एक सिपाही से अपना बाजू छुड़ाया। साथ ही दूसरे झटके से दूसरे फौजी के पेट में लात मारी और अपने आप को छुड़ाया और नीचे नाले में छलांग लगा दी। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया। मैं नाले के ठंडे पानी में गिरा। पानी थोड़ा गहरा था। ऊपर शोर मच गया और मुझ पर स्टेन गन्नों, रिवॉल्वरों और मशीन गन्नों की फायरिंग होने लगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना था। नाले के पानी का बहाव वहां इतना तेज था कि देखते देखते मैं पानी में लुढ़कता हुआ पत्थरों के दरमियान आगे निकल गया। आगे नाले में बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे।
अगर मैं जरा पीछे छलांग लगाता तो इन पत्थरों पर गिरने से मेरी मौत वाक़ई हो जाती। दिन का उजाला अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था और रात की तारीकी बाकी थी। नाले के ऊपर धुंध भी फैली हुई थी। नाले का तेज पानी मुझे वहां से निकालकर दूर ले गया। आगे एक और पहाड़ी आ गई। नाला उसके पहलू से होकर दूसरी तरफ नशेब में चला गया था, जहां पानी का बहाव पहले से ज्यादा तेज हो गया था। नाला गहरा था और मेरे पांव नीचे नहीं लग रहे थे। मैं हाथ पांव चलाता हुआ तैरता चला जा रहा था। फायरिंग की आवाजें मुझसे दूर होती जा रही थी। आसमान पर बार बार रोशनी राउंड फायर किए जा रहे थे, जिनकी रोशनी से आसमान मेरे पीछे रोशन हो रहा था। मगर मैं खतरे की सरहद पार कर चुका था। नाला 2-3 टीलों के पहलू से चक्कर काट कर एक जगह दरख्तों के झुंडों में आ गया। मैंने देखा नाले के किनारे मुझसे काफी दूर थे। दरख्त किनारों पर झुके हुए थे। मैं तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि मैं भारतीय छावनी वाली पहाड़ी से काफी दूर निकल आया हूँ। पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ी इलाकों में 1-2 पहाड़ियां पीछे निकल जाएं तो न सिर्फ ये कि कई मील का फासला पड़ जाता है, बल्कि समत भी बदल जाती है। किनारे पर आकर मैं नाले से बाहर निकल आया। मेरी मैगजीन, जैकेट और पतलून पानी में शराबोर थी। जैकेट में से मैगजीन भारतीय फौजियों ने निकाल लिया था। मैं दरख्तों में एक तरफ तेज तेज चलने लगा। आसमान पर सुबह का उजाला अब नुमाया होने लगा था। थोड़ी दूर गया कि एक खाई आ गई। मैं उसमें उतर गया और दूसरे किनारे पर से बाहर निकल आया। आगे एक और गहरी खड्ड थी। मैंने झांक कर देखा। सुबह के हल्के हल्के उजाले में मुझे खड्ड की तह में दरख्त उगे हुए नजर आए। खड्ड काफी गहरी थी। दूसरा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं नशेब में झाड़ियों को पकड़कर नीचे उतरने लगा। खड्ड की तह में भी एक नाला बह रहा था, मगर ये छोटा सा पहाड़ी नाला था। मैं उसमें से गुजर गया। सामने खड्ड की दूसरी दीवार थी। उसमें ऊपर जाने के लिए झाड़ियों और दरख्तों में एक पगडंडी बनी हुई थी। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी। मैं चढ़ाई चढ़कर खड्ड से बाहर आया तो मेरी नजर एक छोटे से हमवार कते पर पड़ी। ये खेत थे। खेतों के पीछे दरख्तों में एक लकड़ी का मकान बना हुआ था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हो सकता था वहां पुलिस या फौज का कोई मुखबर किसान के भेस में मौजूद हो। मैं जवार के खेत की मींड पर चढ़ने लगा। अब दिन निकल आया था और उजाला चारों तरफ फैल रहा था। सूरज तुलू होने वाला था। जवार की फसल ऊंची थी और मैं उसकी ओट में चल रहा था। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। फिर एक जीप के स्टार्ट होने की आवाज आई। ये फौजी जीप ही हो सकती थी। मैं वहीं फसल में घुस गया और जवार के टांडों को थोड़ा हटाकर जिस तरफ से जीप के इंजन की आवाज आ रही थी उस तरफ देखने लगा। खेतों के किनारे दूर दरख्तों के नीचे जो लकड़ी का मकान मुझे नजर आया था, वहां एक फौजी जीप खड़ी थी। एक फौजी जीप में बैठा था। 2 फौजी लकड़ी के मकान के बाहर एक कश्मीरी किसान से बातें कर रहे थे। इसका मतलब था कि मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था। पहाड़ी नाले से मैं काफी दूर निकल आया था। मुझे जहां तक आए और नाले के तेज बहाव की वजह से ज्यादा 20 मिनट लगे होंगे। मैं हैरान था कि अभी तक मेरे लगाए हुए बमों का धमाका क्यों नहीं हुआ। मैं फसल के अंदर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी। मुझे बम लगाए आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था। बम अभी तक ब्लास्ट नहीं हुए थे। मैंने मायूसी के आलम में सर झुका लिया। बमों के टाइम डिवाइस या डेटिनेटर में जरूर कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई थी, वरना ये नामुमकिन था कि ठीक वक्त पर टाइम बम न फटे। अपने मिशन की कामयाबी पर मुझे सख्त अफसोस हुआ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब हमें दोबारा इस मिशन पर निकलना था और पहाड़ी के एमुनिशन को और साथ ही छावनी की बैरकों और पोस्टों में मौजूद 2000 के करीब भारतीय फौजियों को किसी दूसरे तरीके से मौत के घाट उतारना था। क्योंकि ये बात यकीनी थी कि दिन के वक्त एमुनिशन डिपो में फौजियों ने जरूर आना था और उन्होंने फौरन सुरंग में पड़ा हुआ शगाफ देख लेना था और फिर वो डिटेक्टर से मेरे लगाए हुए नाकारा बमों का भी सुराग लगा लेते। मैं परेशानी के आलम में जवार के खेत में चुपचाप बैठा था कि अचानक जमीन इस तरह लर्जी जैसे जलजला गया हो। उसके साथ ही एक मुहीब धमाका हुआ, फिर एक और उससे भी ज्यादा हैबतनाक धमाका हुआ। फिर धमाके शुरू हो गए। जमीन हिल रही थी। मैं दौड़कर खेत से बाहर निकल आया। मैंने उस तरफ देखा जिधर फौजी छावनी वाली पहाड़ी थी। वहां पहाड़ी की बजाय सिर्फ आग के शोले और धुआं ही धुआं था। आसमान धुएं में स्याह हो रहा था। शोले आसमान की तरफ उठ रहे थे। हर धमाके के बाद ये शोले कभी सुर्ख और कभी नीली रंगत इख्तियार करके और ज्यादा ऊपर को बुलंद हो रहे थे। हमने टारगेट मार लिया था। हमारा मिशन कामयाब हो गया था। मुझे यकीन था कि कमांडो औरंगजेब जरूर हाइड आउट में पहुंचने में कामयाब हो गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।